all right guys, welcome back. तो चलो भाई हम शुरू करते हैं आगे का। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था? रूल्स मतलब रूल्स नहीं, कहाँ तक किया था भाई? नीचे वाला किया था वो भाई, हम थोड़ा उल्टा चलते हैं भाई। हाँ, ये कंप्लीट कर दिया था, ये दोनों बाकी है। ठीक है ठीक है। ओके ओके, पहले ये डैशबोर्ड वाला कंप्लीट कर देते हैं। राइट लाइन फॉर्मूला एंड डैश फॉर्मूला, राइट लाइन फॉर्मूला एंड डैश फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूला: HOCH2 CH CH2 OH OH। और एक ऐसे कैसे कैसे OH इधर और एक लाइन करके OH। फिर गैस ये रहने दो भाई, ये कुछ ज्यादा ही है अभी। ये भी रहने दो, मतलब मेरे पास तो मैं तो चैट जीपीटी कर दूंगा। आप लोगों को करने तो आप लोग कर दो। हाँ, ये वाला कर देता भाई, इतना छोटू छोटू सा है क्या भाई इसमें? राइट डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन। De Broglie principle: the French physicist de Broglie in 1924 proposed that matter, like radiation, should also exhibit dual nature, that is, both particle and wave-like properties. This means that just as the photon has momentum as well as wavelength, electrons should also have momentum as well as wavelength. Analogy, analogy, De Broglie principle: the following relation between wavelength and momentum of a material particle: lambda is equals to h by mv is equals to h by p. हाँ. Proof of de Broglie's dual nature: de Broglie's prediction was confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergoes diffraction, a phenomenon characteristics of waves. Limitations: according to de Broglie, every object in motion has a wave character. The wavelengths associated with ordinary objects are so short because of their large masses that their wave properties cannot be detected. The wavelengths associated with electrons and other subatomic particles with very small mass can, however, be detected experimentally. ठीक है भाई, वापस बोलते हैं इस वापस, मतलब लिखते इस बार लिख कर करेंगे। क्या है, मेरे को भाई पेजेस खाली करने के हैं, पर पेजेस खाली करने के लिए लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं लिख लिख के कर रहा हूँ। आपको अगर नहीं लिखना है तो आप लोग ऐसा एक, ओ भाई भाई ये क्या हुआ? भाई से तो कसम से शॉर्ट से रील बन गई मेरे लिए, लेकिन यार अफसोस कैमरा नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलो, फोकस। डी ब्रोगली प्रिंसिपल, द फ्रेंच फिजिस्ट, द फ्रेंच फिजिस्ट, वो तो नहीं लिखना, अभी लिख दिया, चलो भाई। फिजिस्ट इन 1924, वो डी ब्रोगली में नहीं लिख रहा है, 1924। Proposed that matter like radiation, that matter like radiation should also exhibit should also exhibit should also exhibit dual nature, a dual behavior. In 1924, de Broglie proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior, that is, both particle and wave-like properties. That is, both particle and wave-like properties. Particle and wave-like properties. This means that just as the photon has momentum, this means as just the photon has momentum as well as wavelength, as well as wavelength. Electrons should also wavelength. ठीक है, the relation आता है proof. De Broglie's prediction was confirmed experimentally
De Broglie's principle was confirmed experimentally in 1924. Confirmed experimentally when in that confirmed experimentally when it was found that electron beam undergoes de Broglie prediction was confirmed. Prediction was confirmed experimentally. Experimentally when it was found that when it was found that an electron beam undergoes diffraction, diffraction, a phenomenon characteristics of wave. A phenomenon characteristics characteristics of waves. Limitations. Every object in motion has wave character. The wavelengths associated with ordinary objects are so small that their wave properties cannot be detected. Okay. फिर limitations of octet. ये क्या limitation है भाई? चार. और ये भाई hybridization of sp6 मॉलिक्यूल sp3d2 ठीक है sp3d2 रुक जाओ भाई आपको नहीं दिखेगा मैं इरेज कर देता हूँ ये अब दिखेगा आपको ठीक है चलो भाई ये लर्न कर देते हैं मतलब ये लर्न तो था लेकिन मैं भूल गया वापस स्टेट लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल इट कैन नॉट एक्सप्लेन शेप एंड बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल it cannot explain shape and bond angle of molecule and bond angle of molecule उड़ी पापा यार ये क्या है भाई यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है हाँ कोई बात नहीं छोड़ो वो अलग चीज है सॉरी मैं वो आप लोग को नहीं बता सकता XCF2 KrF2 XCF2 KrF2 XCOF2 etc can't be explained by Lewis. It cannot explain relative stability of molecule. It cannot explain relative stability of molecule. It cannot give it cannot give any information of energy of molecule of energy of molecule. Find out the value of equilibrium constant. चलो भाई ये तो आया स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी गिव हाँ वो तो बाद में करते भाई पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल देते हैं तो डेल्टा जी इक्वल -2.303 आर टी log k so delta g by 2.303 rt minus equals to log k delta g हमारे पास -13.6 into 10⁻³ जूल है 298 into 8.314 into 2.303 करना है guys so 2.38 so ln will be 2.4 into 10⁻². और ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस CCl4 plus C plus 4Cl and calculate bond enthalpy of CCl in C4 एक ही सेकंड गाइस हम समझ जाते हैं हम आपके 2 मिनट ले रहे हैं उसके लिए
लेकिन क्या करे। बस एक चीज देखनी थी। हाँ ये रहा। ओके ओके, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और सोचो क्या करना है, आंसर देके मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ आपको। आई गया। तो देखो, CCl4 है, तो इसका डेल्टा H हमको सब कुछ किया ना, डेल्टा वेपराइजेशन, डेल्टा फ्यूजन, ये तो क्या भाई तुमको चाहिए क्या यार अपने जीवन में भाई, और क्या मांगती भाई तुम लोग भाई। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे भाई, पेन कहाँ गई। बिना टाइम वेस्ट किए, CCl4 C+4Cl, so delta H equals to 715 plus 2 242 minus 30.5। इन दोनों को माइनस करो, इसको और इसको प्लस करो, टॉइस करके इसको टॉइस कर देना, ठीक है, हो गया भाई तुम्हारा आंसर। फिर ये क्या है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है। हम कौन से क्वेश्चन नंबर भाई 36 में बता रहे हैं भाई, पेजेस कहाँ गए। अरे यार गाइस, मैंने कहा लिख देता हूँ, ये खुलेगा नहीं जल्दी, लेकिन ये तो खुल गया, कोई बात नहीं। ये वाला कर रहे थे ना। For the equilibrium 2NOCl, 2NO plus Cl to the value of the equilibrium constant cases, Kp का फॉर्मूला का इसको क्या है अपना फॉर्मूला, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा है। सो इधर n हमारा 2 1 3 1 निकल कर आ जाएगा, और Kc हमारे पास है इतना, सो 3.75 टू 10 टू दी पावर -6 आर है 8.314 इंटू T 1069 वो ले लो और सॉल्व कर दो। ओके, इन्होंने आर को लीटर में ले लिया, बार बाई लीटर, तो आप बार बाई लीटर में ले लो तो 0.08 कर देना, ठीक है। तो आपका Kp की वैल्यू हो जाएगी 3.331 इंटू 10 टू दी पावर -4, ठीक है। फिर इसमें क्या है, तो Kp फॉर द रिएक्शन CO2 प्लस C इक्वल्स टू 2CH3 at 1000 if initially PCO2 and PCO and pure graphite is present, calculate equilibrium partial pressure of CO and CO2। तो पहले हमारा CO2 प्लस C 2CO बनेगा, तो CO हमारा 0 है, ये कुछ भी नहीं है, और ये 0.48 है बार, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम में जाएगा तो घटेगा ये, तो 0.48 माइनस एक्स होगा। हाँ डिफरेंस 0.48 माइनस एक्स होगा, और इधर ये एक्स हो जाएगा 2x। ओके, 2 मोल है ना भाई, सॉरी मेरे माय बैड। सो 2 मोल है तो ये अब 2x डिवाइडेड बाय 0.48 कर देना, टू यानी देखो Kp इज इक्वल्स टू पी सी ओ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PCO2, सो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.48 माइनस एक्स, और हमारे पास 3 गिवन है वैल्यू तो 3, सो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.48 3 2 4 1 2 1 4.11 1.44 माइनस 3x, तो अभी सबको एक जगह 4x स्क्वायर माइनस की जगह प्लस 3x माइनस 1.44। अब ये भाई आप लोग सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, माइनस और प्लस तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव, तो ये 0.3325 बार आ जाएगा आपका एक्स। तब जब आप पुट कर दोगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी, पी ना
पीसीओ निकालोगे तो 2x, तो 2 into 0.3355 इक्वल्स टू 0.6650, और PCO2 is equals to 0.48 minus 0.3325 equals to 0.1475 बार। अब खत्म भाई आपका क्वेश्चन। अब ये वाला 13.8 ग्राम of Na2N2O4 was placed in 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin and allowed to attain equilibrium. N2O4 equals to 2NO2. The total pressure at equilibrium was found to be 9.15 bar. Calculate Kp and the partial pressure at equilibrium. So भाई मोलर मास हमारा N24 का हो जाएगा 92, और हमको जो गिवन मास है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर क्या आ रहा है भाई? 0.15 आ रहा है, ठीक है। सो N2O4 2NO2, so 0.15, ये इधर कुछ नहीं, इधर 2x, 0.15 माइनस x। टोटल प्रेशर हमको ये टोटल प्रेशर हमको ये दिया है। अब भाई टोटल प्रेशर कुछ तो सोच समझ कर ही दिया होगा, हमने जो लिखा वो तो सही है ना। 498 कैसे लाए भाई? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी कर दिए, पार्शियल प्रेशर। उड़ी बाबा भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है आंसर, ठीक है, स्टार मार्क कर देना भाई। अगर आप लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस तो कसम से बता रहा हूँ ये बहुत बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। और ये मैंने क्या कर दिया, कोई बात नहीं, इरेज कर सकते हैं, हमारे पास है इरेजर और पेन भी है, ठीक है गाइस। सो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। Okay, so PV is equals to nRT, nRT, P is equals to nRT, P is equals to nRT by V. So N2 बना जाएगा R 0.083 इंटू 4। सो टोटल प्रेशर हमको गिवन है, तो उस टोटल लीटर भी गिवन है, ओके। सो P is equals to 498। हाँ, सो 2x तो वो तो रहेगा इधर 4.98 माइनस x, और ऊपर 4.98। अब भाई साहब क्वेश्चन, टोटल प्रेशर, बस अब हो गया हो गया हो गया। देखो मैं बताता हूँ, टोटल प्रेशर PT is equals to PNA2O4 प्लस PNO2, और हमको पता है N2O4, हाँ N2O4 का 4.98 माइनस एक्स, सो 4.98 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 9.15। अभी आप लोग सॉल्व कर दो, ये सॉल्व करोगे तो हमारा x 4.17 बार, सब पार्शियल प्रेशर निकाल दो, N2O4 2x होगा PNO2 का, NO2 का, ठीक है। सो 2 इंटू 4.17, 8.34 bar, Pn2O4 is equals to 4.98 minus x, 4.98 minus 4.17, 0.81 ठीक है। अब भाई किसी के भी, और ये रुक जाओ, Kp is equals to Kc, डायरेक्ट हम निकालने जाए तो Kp is equals to 2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाला यार, क्या भाई ये लोग अब निकाल रहे हैं। डायरेक्ट हम रेशियो ले लेते तो भी तो पता चल जाता, लेकिन कोई नहीं, इन्होंने ले लिया तो फिर कर देते। पी एन ओ टू
square divided by Pn2O4 8.34 square divided by 0.81 85.87 bar और अब Kp is equals to KCRT की पावर डेल्टा n और अब Kp हमारे पास है 8 पॉइंट अरे 85.87 divided by 0.083 into 400 is equals to Kc तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 मोलर निकल कर आ जाएगा और ये आपका सवाल खत्म। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। और मेरी आवाज भाई मेरे को माइक में अलग सुनाई दे रही है, माइक से जो मैं बोल रहा हूँ उसके माइक से जो मैं बोल रहा हूँ उसमें अलग सुनाई दे रही और मेरे कानों में अलग सुनाई दे रही भाई। नॉर्मल में तो मैं अच्छा लग रहा हूँ बोलते हुए, ये भाई स्पीकर में फटेली फटेली सी आवाज आ रही। रुक जाओ भाई, वॉल्यूम कट। हेलो, देखो। हाँ हाँ, आवाज ही नहीं आई सबको क्योंकि मैंने वो लो कर दिया था वॉल्यूम। ठीक है, अब आ रही है। हेलो, ये सब तो अभी कोई काम कर नहीं है, अभी तो ये करके। चलो भाई आगे का सवाल। Find the value of delta G for the phosphorylation 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 of glucose is 13.8 kilojoule per mole. Find the value of Kc। ठीक है guys, so okay guys, wait। फिर आप ही क्या? हाँ, आप ही क्या? ओटीपी कैसे आप ही को? अब तो मैं आप ही दे तो। हाँ, ये ओटीपी। लाइट जा बात। एक आपने आधा एक लाख रुपए पर। तू आ। भाई आप ही दे दो। अरे तेरे पीछे अपना चल खावे। चलो गाइस आगे क्या करते हैं। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, डेल्टा जी इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसी। तब भाई लॉक की जगह एल एन किसी कर देते भाई। डेल्टा जी का फॉर्मूला का आखिर एक ही है, उसके अलावा तो कोई फॉर्मूला नहीं। तो डेल्टा जी 13.8 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 0.0 इंटू 8.314 इंटू 298 इज इक्वल्स टू एल एन के सी। ये क्या है? अरे मतलब ये क्या है, नहीं रुक जाओ, हाँ माइनस, हाँ मैं सोचूं माइनस कहाँ रखा मैंने इसलिए। सो आपका आंसर निकल कर आएगा एल एन के इज इक्वल्स टू 3.814 इंटू 10 to the power -3। अब कैलकुलेट द पीएच आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम का है ये, इधर तो खुद लिखा हुआ है आयोनिक प्रोडक्ट। पूरी पावर, ये सब क्या कर रहा हूँ, ये किसी को वन लिखा हुआ नजर आएगा ना कि एरो। और ये भाई ये आई नहीं है, यू और ये ई और वो कुछ डैश डैश डैश। ठीक है गाइस, calculate the pH of 0.08 molar solution of hypochlorous acid HOCl. The ionization constant of the acid is
2.5 into 10 to the power minus 5. Determine the percent dissociation of HOCl. तो भाई HOCl को पानी में डाल दो, HOCl प्लस H2, HOCl प्लस H2 तो बनेगा H3O प्लस प्लस ClO माइनस। और ये कितना है भाई, 0.08 है HOCl। वाटर कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, और सब कुछ नहीं है। इसका ही जो चेंज होगा तो इसको, अब इसका जब आयनिक इक्विलिब्रियम तो जाएगा, नहीं इक्विलिब्रियम जाएगा तो 0.08 माइनस एक्स, बाकी सब एक्स 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 एम एल, H3O प्लस एक्स, ClO2 माइनस एक्स, वाटर तो क्या ही एक्स होगा। सो ये काफी कम है वैल्यू एक्स, 0.08 इज मच मच हायर देन एक्स। सो अपना वो एक फॉर्मूला था ना भाई, छोड़ो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, आपको भी याद नहीं आ रहा, रहने दो। डायरेक्ट ये मेथड लगाकर सॉल्व कर दीजिए। K is equals to H3O plus plus ClO minus by HOCl. So 2.5 into 10 to the power minus 5, दोनों x x तो x square divided by 0.08। सो अब आप जब सॉल्व करोगे तो x 1.4 into 10 to the power minus 3 मोलर निकल कर आ जाएगा। x आपका ये निकल कर आ जाएगा, और x यानी pH is equals to minus log H plus, माइनस लॉग H प्लस यानी माइनस लॉग 1.4142 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। सो यानी ये आप सॉल्व करोगे तो 2.85 निकल कर आ जाएगा। सो डिसोसिएटेड कितना हुआ वो लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल जितना था वो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका 1.768 निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर solubility of NiOH twice in 10 ml NaOH. The ionic product of NaOH is 2 into 10 to the power minus 15। अब इतना तो समझ में आ गया, POH इसका ही निकालना है। ओके लेट्स गो। तो NaOH यानी 0.1 होगा, 0.10 दिया है NaOH। फिर NaOH को अगर हम x मान ले, सो ये Na2 प्लस प्लस 2OH माइनस होगा। सो NiOH का ट्वाइस जब डिसोसिएट होगा तो Na2 प्लस प्लस 2OH माइनस में होगा। सो ये x, ये 2x और ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो वो कुछ नहीं होगा। फिर अब जब हम ऐड करेंगे तब टोटल कितना आएगा, 0.1 प्लस 2h। बट h की वैल्यू ही इतनी कम है, सो हम नेगलेक्ट कर देते हैं 0.1 के हिसाब से सॉल्यूशन में। ठीक है, सो डेल्टा, अरे ये पेन बंद हो गई, अब चली गई। सो ओ एच माइनस हमारा 0.1 मोल है, मोल ही आ जाएगा। ठीक है, फिर अब की एस पी से आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 into 10 to the power minus 15 एस, और ये 0.1 का स्क्वायर। सो एस आपका आ जाएगा 2 into 10 to the power 13। ठीक है, साइन ऑक्सीडेशन नंबर ये तो गैस मैंने कर दिया था, ये तो हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी हो रहा है, ये Hg2Cl2, हाँ ये सब हो रहा है भाई, ये रूल आ रहा है। दिस इज मेकिंग मी क्राई। उसके बाद अरे यार ये भाई, इनको भाई बस IUPAC से इतना लगा। अरे ये भी तगड़ा क्वेश्चन है guys। आई एम पी, ठीक है भाई, IMPA। और भाई आगे के तो भाई मैंने भी ज्यादा नहीं किए,
उड़ी बाबा, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। हाँ, ये तो हो सकता है, ये भी मैं कर सकता हूँ। ओ भाई, ये सारे गिवन है भाई, कसम से। इसमें मैंने भी खुद अभी पहली बार तो देखा है क्वेश्चन। अरे यार, ये मत आ यार, ये रुलाता है। ऐसे एक बच्चा होता है, इसकी एक आंख इधर एक आंख इधर, दोनों आंखों से कच 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 पानी गिर गया, कच 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 पानी गिर गया। बच्चा तो दूर दूर तक नहीं लग रहा, स्पाइडरमैन के बुआ लग रही है कि भाई कौन सी छिपकली आ गई। क्या बना है ये भाई। हटाओ हटाओ इरेज। ठीक है भाई। ओ भाई साहब, यार ये सब कब आ गए? ये सब मेरे को भी नहीं पता था भाई, कसम से। कोई नहीं, चलो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हम भाई 43 में पहुंच गए गाइस। उड़ी बाबा। पहले तो दो सबके हाफ हाफ रिएक्शन बोलता है लिखने को। राइट हाफ रिएक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम भाई के हिसाब से हाफ रिएक्शन लिखते थे। तो जब हम हाफ रिएक्शन लिखेंगे ना गाइस, तो 2 सेकेंड वैल्यू क्या आती है? हाँ, उड़ी बाबा, इसमें सारे पेज है भाई, खाली। स्टेप 1, राइट हाफ रिएक्शन। सो MnO माइनस MnO4 माइनस चेंज होगा MnO2, I माइनस I2। I2 का 0 होगा, I1 का -1 होगा, MnO4 का 8 -7, 4 की जगह +4 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सामने की तरफ चला जाएगा। सो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। हमको आई बैलेंस करना पड़ेगा, एक तरफ 2i एक तरफ 1i है। सो 2i माइनस इज इक्वल्स टू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और सेम MnO4 भी, उधर 2 है इधर 4 है। और इधर जो एक गैप है वो भी 3 इलेक्ट्रॉन का है, मतलब ऐसे देखने जाए तो, करना तो कुछ ज्यादा ही होगा। तो MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, सो MnO2 प्लस 4OH माइनस। ठीक है गाइस। फिर दोनों तरफ दो H2 ऐड कर दो, 2H2O ऐड कर दो। MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, MnO2 प्लस 4OH माइनस। ओके, अब भाई मल्टीप्लाई कर दो सबको 3 से। अरे 4। ठीक है भाई। अब भाई साहब, इधर 3 इधर 2, तो भाई मल्टीप्लाई कर चालू। सो 6i माइनस प्लस 2 MnO2, 6i माइनस प्लस 2 MnO2 कर दिया, MnO4 माइनस कर दिया। 6i माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 4H2, 3i है। ये भाई छोड़ो, दिमाग का दी और हमें नहीं कराई। हमारे पास और भी बहुत सारे है, इस करने कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, हम अटक जाए। अरे यार, ये सबका कंडेंस्ड फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन क्यों पूछते भाई। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, CH3 3 C CH2 CH3 2। और ये बॉन्ड लाइन फॉर्म भाई। राइट कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेनिंग CNH। अरे यार, ये दिमाग का देखा। अब ये करते हैं भाई।
मेरे को आईयूपीएससी भाई पसंद ही नहीं यार, इधर है कि आईयूपीएससी के अलावा और कुछ पूछते ही नहीं ये लोग। क्या कर सकते हैं बस। अरे 2 सेकेंड भाई गाइस, 2 सेकेंड। भाई हमको 30 मिनट हो गए रिकॉर्डिंग करते करते, तो मैंने सोचा बस 2 मिनट का। ओ भाई साहब, लेटेस्ट अपडेट ले रहा था गाइस, रुक जा। दिस इज द काइंड ऑफ precision brain surgery requirements. ओरी बाबा। हमें, रुक जा। देख रहा है बस ऐसा सुन लेने का, ठीक है दूसरा मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। अब भाई मैं थक गया था बोलते बोलते, सुन लिया तो वापस आना दिया बोलने की, अब वापस बोलेगी। इथाइन प्लस सी एल और बी आर प्लस H2O, तो HCCH, ये इथाइल हो गया, प्लस Cl कर दो, Cl कर Cl2 प्लस H2O, सो CHOH, CHCl, ठीक है, CHCl कर दिए, फिर Cl प्लस OH माइनस, सो CH। भाई साहब ये कैसे याद करूँगा। ओके ये वाला रहने दो भाई, दूसरा वाला याद कर लेते हैं। एक तो मिला जो याद करे, तीसरा वाला। रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विथ HCl। चलो भाई, रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन विथ HCl। इस 7 बजे मैं वापस से ब्रेक दूंगा आपको, डोंट वरी, चिल आउट करो। 7:15 से पहले मैं आपको एक ब्रेक दे दूंगा, मैं अपना खुद का एक गाना गाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। हाँ, नहीं भाई गाना नहीं गाऊंगा, रहने दो। वो अलग से वीडियो में ना बनाऊंगा, कंटेंट है यार गाइस मेरे लिए, आप लोग समझते नहीं। 1 2 3 CH प्लस HCl, BaCN ट्वाइस, भाई अंधेरा हो गया।
CH2 CH, रुक जाओ गाइस, मैं मच्छर जाए, 2 सेकंड, माफी चाहता हूँ। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विथ HCl, सो HCCH प्लस HCl मतलब CHCH, एसिटाइलिन मतलब इथाइन प्लस HCl, इथाइन प्लस HCl, उसको जब BaCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH2 CH3 CHCl निकल कर आए। फिर पांचवा कर सकते हैं, छठा, सातवां, चौथा भी कर सकते हैं, मतलब पहले दो के अलावा बाकी सारे किए जा सकते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ इथाइन करेगा इसमें, ओजोनोलाइसिस ऑफ इथाइन। सो एक तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर क्या है, प्लस O3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O3 करेंगे तो एक एक O ऊपर, नीचे CH, एक नीचे, एक इधर CH, एक नीचे O, दोनों को कनेक्ट, ये भी आपस में कनेक्ट, फिर Zn का तो H2O कर देगा तो -ZnO करके, -ZnO कर दे तो CHO ग्लाइकोजल बनेगा, ग्लाइकोजल जल बनेगा, ठीक है, जल जल जला जल। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 3 प्लस O3 करेंगे तो OCH डबल बॉन्ड, और उसमें से ये माइनस कर, तो ये बनेगा, ठीक है भाई। कंप्लीट कंबशन ऑफ इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, कंप्लीट combustion of ethane in presence of ethane in presence of air, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 5/2O2, so 2CO2 प्लस H2O प्लस 1300 किलो जूल एनर्जी। हाँ ये वाला बढ़िया था भाई, ये वाला बढ़िया है, चौथा वाला भी बढ़िया है भाई, नाम कितना बड़ा है, हाइड्रोजन। ओके भाई, देखो सब दे दिया, लीनियर कैटलिस्ट PaPSO4, तो बस क्या करना है, कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब CH6, और ये रख दो तो आपका CH2 इथेन बन जाएगा। उड़ी बाबा यार, ये सब करने में मजा आता है भाई, ऐसे क्वेश्चन दो, नाम बड़े बड़े काम छोटे छोटे, फिर वो कुछ छोटे नाम वाले और बड़ा धमाका वैसा वाला मत देना भाई, उन सबसे हमको बड़ी चीज है, हमको क्या, ज्यादातर को होगी, कुछ 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 हो गए भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महान, उनकी बात नहीं कर। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट PDBaSO4, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 PDBaSO4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइन, डबल बॉन्ड आएगा, देखो भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला ना भाई यार, हम तुम्हारा भाई बोले और वो कभी गलत हो सकते हैं क्या। ये वाला सिक्स वाला बाकी है, हाँ सिक्स वाला बाकी है, ये 3 मार्कर में आ जाए तो एक दो, एक दो तीन, भाई ये तो 3.5 मार्कर का है, अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स का। रिएक्शन ऑफ प्रोपाइन विथ alkaline KMnO4, MnO4, so CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसको
300 के एम एन ओ 4। हमको जो नाम दिया वही ना लिखा, ये Na2CO3 क्यों लिखा, फिर CH3COCOCH3 पायरुविक एसिड, अरे बाबा पायरुविक एसिड। फिर 300 पर, और अगर 380 पर कर दे तो CH3COOH+CO2। अरे बाबा बढ़िया बढ़िया। फिर ये नहीं कर रहा, मैं हटाओ। अब भाई ये क्या करना है, ये कुछ नहीं करेगा, ये वाला सेक्शन सी करने के लायक है। सेक्शन सी कर देते। अरे ये आधा आधा बीच में से काटे कुटी क्यों जाता है। अब भाई लिखने देना आधा को, अरे यार अभी तो ने बोला, अभी जस्ट लिखने देना होता। हाँ ये वाला कर दूंगा, ये वाला मैं करूँगा, 56 वाला करेगा, 57 करेगा, ये 58 तो क्या 58 नहीं करेगा, 59 करेगा, 60 वाला भी करेगा मैं। तो भाई साहब किसी ने कुछ देखा तो नहीं ना। ओड़ी बाबा। अब बताओ भाई, अब तुम लोग नहीं देख सकते, ठीक है ना। अब देख सकते हो, वो जादू कर दिया था मैंने, ऐसा जादू किया था कि लो भाई, क्या फायदा ऐसे जादू का। रुको भाई रुको, चलो भाई चलो। बस अब चाहिए सब कुछ, चलो भाई चलो चलो। भाई हम बहुत आगे आ गए। A compound contains 4.07% H, 24.27% carbon, and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formulas? So, conversion of mass percent to grams. So, since we are having mass percent, it is convenient to use 100 gram of the compound as the starting material. Thus, in 100 gram sample of the above compound, 4.07 हाइड्रोजन, 24.27 कार्बन और 17.65 ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लोरीन है। और अब ये इन सबको भाई मोल्स में कर दो, तो डिवाइड कर दो, 4 डिवाइडेड बाय 4.07 डिवाइडेड बाय 4.0 divided by 1 is equals to 4.07. 24.27 divided by 12, 2. 71.65 divided by 36.5, 2. ठीक है, डिवाइड द मोल वैल्यू obtained above by the smallest number, तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर 2 मिला। सो 211, 211, तो CH2Cl बनेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने जाए, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए इन सब का एडिशन कर देते, तो इनका एडिशन 49.48 आएगा, और टोटल हमारे पास है 98.96 डिवाइडेड बाय 49.48, तो 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C2H4Cl। ठीक है भाई, ये तो कुछ भी नहीं था। फिर ये वाला भाई, ये बहुत कुछ है ना, शायद से ठीक है भाई, मैं श्योर नहीं हूँ। फिर 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce NH3. Calculate the NH3 formed. Identify the limiting reagent in the production. So N2 plus 3H2 is equals to 2NH3. N2 plus 3H2 is equals to 2NH3. So moles of N2 मतलब 50 हमको kg में है। तो भाई kg को छोड़ो, kg को kg में ही रहने देते हैं, ये कर दे, कन्वर्ट कर देते हैं इंटू 1000।
नीचे भी केजी से कर दिया। सो 1000 और N2 का 28 होता है और एक ही मोल है, सो 50/28 और 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया इसलिए। सो 17.86 into 10 to the power 2, 17.86 into 10 to the power 2 मोल। फिर H2 के लिए भी सेम, 10 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1 मोल है और उसका भी 2 होता है, तो उसका आ जाएगा 4.96 इंटू 10 to the power 3। हमको ऊपर वाली इक्वेशन के लिए 1 मोल N चाहिए और 3 मोल H2 चाहिए। सो हमको 17.86 आया। सो उसको हम NH3 के टर्म्स में लिखे तो 3 मोल डिवाइडेड बाई 1 मोल, हाँ वो वैसा किया। सो 5.36 इंटू 10 to the power 3 मोल्स ऑफ H2 चाहिए हमको, बट हमारे पास तो 4.96 ही है। सो H2 इधर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सो 4.96 इंटू 10 to the power 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3.30 इंटू 10 to the power 3 मोल्स हमारे पास NH3 आ जाएगी। अब इन्होंने भाई ये फालतूगिरी की है ग्राम्स में, हमको वो नहीं करनी है, हटा। क्यों करे हम, रुक जाओ भाई, मैं नहीं दिखा रहा। क्यों करे हम भाई, हमको नहीं करना। हमको क्या, हम किसी को नहीं करना, ठीक है भाई। ये तुम्हारे तो क्या रखो। ये फालतूगिरी है भाई, फालतूगिरी। ये सब फालतूगिरी में, ये सब फालतूगिरी है भाई, सब फालतूगिरी है। मैं रुक जाओ भाई, मिटा ही रहा हूँ। क्यों करना है भाई, जिसको करने की इच्छा है उसको भी मैं नहीं कर देगा भाई, फालतू में क्यों करोगे। हटा भाई, ये सब कुछ हटा। मेरे भर देता है तो किसी को ऐसा ना लगे कुछ लिखा हुआ था। हम्म, 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 अरे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, चलो। अब मैं ये पूरा मिटाऊंगा तो पूरा मिट जाएगा, और हमरे को वो रिस्क लेने का ही तो नहीं है, ठीक है। नहीं, कोई मिटा कर तो देखो। अबे यार, ये सब इतना आगे वापस रुक जाओ भाई। अब एक ही सेकंड का काम, अबे वापस हो गए। अब तो चलेगा भाई। अब तो भाई जैसा हो वैसा चला लेना, इधर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो भाई, इतनी थिकनेस तो चाहिए। फिर 100 वोल्ट बल्ब emits मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर। अरे ये क्या पपलू सवाल है। n इज इक्वल्स टू 100 into 400 into 10 to the power minus 10 divided by 6.626 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8। बस सॉल्व कर दो तो तुम्हारा 2 into 10 to the power 20 आ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन, ठीक है। What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from, अरे भाई इनिशियल फाइनल, सो वो वाला रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1/लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन एटम है ना। सो आर नॉट की वैल्यू लो भाई, हमको दिया ही है। मतलब डेल्टा ई हमको ये 2.18 इंटू 10 to the power -18 और 1/25 -1/4।
2.18 into 10 to the power minus 18 into 21 by 100 minus is equals to minus 4.578 into 10 to the power minus 19 जूल। ये हमारी एनर्जी आ गई। अब भाई फ्री फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं। सो V इज इक्वल्स टू हमारा जो एनर्जी है 4.5 टू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। सो आ गया 7 इंटू 10 टू दी पावर 14 और लैम्बडा इज इक्वल्स टू CV बाय लैम्बडा। और हमारे पास CH3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और लैम्बडा 7 इंटू 10 टू दी पावर 14। सो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर। और हमारे हमको ये भी मिल गया। चलो भाई ठीक है। फिर एनर्जी डायग्राम ये वाला रहने तो ये मैं नहीं करा, जिनको करना है करो। ओके, दो एक ही वैरायटी के क्वेश्चन, फिर ये वैरायटी। भाई ये कुछ ज्यादा ही वैरायटी नहीं आ रही बार बार ये। फिर अब ये वाला क्वेश्चन है। फिर अब ये सब कुछ। भाई साहब ये क्या ब्रेकिंग ऑफ पाइप बॉन्ड, ये सब क्यों याद करें हम, मेरे को नहीं करना ये। और भाई कोई नहीं, चलो हम ऊपर वाले से ये। वाह। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3 OH from the following data. Okay. So पहले तो हम ये इक्वेशन लिख देते हैं और उसका डेल्टा H लिख देते हैं। फिर जितना जो जो इंफॉर्मेशन जो है ना वो हिसाब से करते जाते हैं। हमारे पास 2H2 है तो -26 इंटू 2 कर देंगे। फिर एक CO2 है तो -393 कर देंगे। और हमारे पास HCO2 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको X मान लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। तो हमारा ये आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ CO, CO2, N2O and N2O4 are this respectively. Find the delta H. वैल्यू पुट कर दो भाई। N2O एक बार है तो एक बार रखो। N2O, अरे N2O, N2O तीसरा -81 है। फिर 3CO2 है तो 3 इंटू 393 कर दो। फिर माइनस करके 3CO तो इसकी वैल्यू रख दो और इसकी वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दो। ये मैं नहीं कर रहा है 56। ये वाला कर देते भाई, इतना ही है। इथाइल प्लस 2H2 निकल के प्रेजेंट में बनेगा CH3 ठीक है। CH3CCH प्लस 2H2 PD के रिस्पेक्ट में बनेगा CH3CH2CH3। बढ़िया।
भाई साहब। बे 4 मार्कर 5 मार्कर। सो आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी। बस इतना ही था आज के लिए।